Hello students, I am Shailesh Sharma. Now I teach you number systems for class 9th, second topic, that is called decimal number. In your NCERT book, the decimal number is given, and decimal number, we can divide this decimal number into two types now. The decimal number can be divided into two types now. The first type is called terminating decimal. And second type is called non-terminating. What does it mean of terminating and non-terminating? Terminating means the decimal number which will end somewhere, and non-terminating decimal number means that the decimal number which will never end. Like if I will give you example, then you will better understand. Suppose that I have taken an example of 32 by 5. If you divide it, then 32, that is 5 6 are 30. Then we can put decimal here, and after that 5 4 are 20. So 6.4 is there. Okay बच्चों, this is called terminating decimal because after one place it will fully divide. Some students have problem doing this type of division, तो मैं इनके लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ बेटा. आप नॉर्मल डिवीजन भी कर सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपको नॉर्मल डिवीजन रफ पे करना पड़े तो आपको मुश्किल लगे. आप कर सकते हैं. 5 6 are 30, 2 is remainder. Now we can put decimal here and increase 1 0 here. Now 5 4 are 20. So this is how we get 6.4. And what you see that decimal is ending here. So it is called terminating. This is called terminating decimal. Now just take another example, that is suppose 20 by 6. This is 20 by 6. So if we divide 20 by 6, what we can do? 6 3 are 18. Okay. Now 2 is there, and now we cannot divide 6 by 2. So we can put decimal here and put 0 here. 6 3 are 18. Okay. Now the remainder is again 2. What you see that always. Now we can put 0 here. Now you see that always the remainder is 2. It will never be in. Okay बच्चों, it will never be in. So this type of decimal expansion where 3.333 like this is called non-terminating. What बच्चों? Non-terminating. And this non-terminating decimal expansion can be represented by like this, 3.3 bar. What we say? 3.3 bar. Okay बच्चों? So now our next topic is, if someone asks you, we have to convert a given decimal number into a rational number. Suppose someone said that write 2.75 in a rational number form. So what you do? You will just do 2.75 divided by 100, because decimal is at 2 place, and now decimal will be cancelled out, so 2 places 100. So the answer is what? 275 by 100. And now you can make it in a simpler form, like 5 5 are 25, then again 5 5 are 25, 5 2 are 10 and 0. Again 5 से हो सकता है 11, 5 4 are 20. So your answer is 11 by 4. आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप 11 by 4 भी आंसर लिख सकते हैं. ओके बच्चों, ये तो बहुत आसान था क्योंकि ये क्या था? इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. बट मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि आपको 2.75 बार का करना है. क्या करना है बेटा? 2.75 बार.
तो अब आपको ध्यान रखना है कि आप 2.75 बार को डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि 2.75 बार लिखा और हमने नीचे डेसिमल हटाया इसका और नीचे 100 कर दिया, ये तुरंत गलत हो जाएगा बेटा, ऐसे नहीं करना। ठीक है, कई बच्चे ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। इसका सही तरीका मैं आपको बताता हूं। इसे क्या करना है, आप ये जो भी क्वेश्चन आपको दिया है आप उसको x मान लीजिए। क्या मान लेंगे बेटा, लेट x इज इक्वल टू 2.75, x इज इक्वल टू 2.75। नाउ डेसिमल के बाद यहाँ पे देखो बेटा कितने प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस हैं, तो आपको इस x में और 2.7 दोनों में 2 जीरो से मल्टीप्लाइड करना, मतलब 1 के बाद 2 जीरो से, यानी x में भी 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे और 2.75 में भी 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाइड, मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाइड करना है। अगर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस होंगे तो 1000 से, डेसिमल के बाद केवल 1 प्लेसेस हैं तो आपको 10 से मल्टीप्लाइड करना है। ओके, सो इट बिकम 100x एंड दिस बिकम 275.75 बार। Why it become 275.75? देखिए फर्स्ट तो आप ये देखिए बेटा कि आपका डेसिमल 2 प्लेस खिसक चुका है, यहां पहुंच गया, और अब आपको पता है कि 75 का मतलब 75 75 75 अगेन एंड अगेन, तो हम 275 तो लिख सकते हैं और उसके बाद 75 यहां लिख सकते हैं। आपको नहीं क्लियर हो रहा है उसके लिए मैं आपको बताता हूं। 2.75 बार को बेटा हम लिख सकते हैं 2.75 75 75 अगेन एंड अगेन। अगर हम लोग 2 प्लेस का डेसिमल इधर खिसकाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो डेसिमल हमारा हो जाएगा 275.75 75 एंड सो फॉर। तो हम इसको लिख सकते हैं 275.75 बार। ओके बच्चों, यू कैन सी हियर। ओके, नाउ 100x is equal to 275.75, so take it is equation 2 and this is our equation number 1. ओके बच्चों, नाउ 2 minus 1, इक्वेशन 2 minus 1, क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस करिए, तो 100x में से अगर x को माइनस करेंगे इट बिकम 99x, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करिए और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ये हो जाएगा 275.75। तो ये बार वाला टर्म इसके साथ माइनस होगा बेटा, तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। अब 275 में से केवल 2 माइनस होगा, तो दिस बिकम 273। सो नाउ व्हाट इज आवर आंसर, आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 273 बाई में 99। आप लोग इसे छोटा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो और छोटा करिए इसको, 273 अपॉन में 99 छोटा करिए, 3 से कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, सो द आंसर इज व्हाट 91/3। ओके बच्चों, होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा मुश्किल जरूर है ये टॉपिक, लेकिन आप इसको इस तरह से बहुत सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। बच्चों एक बात का ध्यान रखिए, आपको जहां रिक्वायरमेंट हो वहां आप रफ करिए, रफ करने से जितना आप बचेंगे उतना ही क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल होगा। आपको नॉर्मल डिवीजन नहीं आ रहा था, आप कर लीजिए, रफ पे करिए। रफ कोई नहीं देखने जा रहा है कि क्या आपने किया, लेकिन सही करिए, रफ को यूज करिए, रफ करने से मत बचिए। ओके बेटा, होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में भी हैं, आर डी शर्मा भी हैं, आप वहां से लगाइए। उसके बावजूद भी कुछ डाउट आता है तो प्लीज मुझसे पूछिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में भी मिलेगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ओके बच्चों, बाय।